Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is probability, chapter number 11. We have earlier discussed the topic of probability. I hope you have got the idea of probability. First, earlier the events. Events are many types: simple events, compound events, equally likely events. These events are discussed earlier. Today we discuss mutually exclusive events. The two events A and B are said to be mutually exclusive or disjoint if they cannot occur at the same time. That is, they have no sample points in common. So, A intersection B is equal to 5. They have no common points between them. For example, when a coin is tossed, we have either head or tail, but not both. These two events, head and tail, are mutually exclusive. क्योंकि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते. दे आर डिसजॉइंट, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट अकर एट द सेम टाइम. The second example is when a die is rolled, the outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 are mutually exclusive because we may have one and only one face of the die. इसी तरह से जब डाई को हम रोल करते हैं तो उसके ऊपर 6 नंबर हैं और वो 6 नंबर जो हैं, कोई एक दफ़ा रोल करेंगे तो कोई एक नंबर ही आएगा, 6 के 6 एक साथ नहीं आ सकते, यानी एट द सेम टाइम दिस 6 आर नॉट अकर. तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Exhaustive events. The two events A and B are said to be exhaustive if they constitute the entire sample space. That is, A union B is equal to S. S is the sample space. कि ए और बी ऐसे इवेंट्स हैं कि उनका यूनियन जो है वो किसके इक्वल हो, एस के इक्वल अगर हो तो वो क्या कहलाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे. या फिर हम इसको कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है. तो अगर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 हो तो तब भी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर एक्सॉस्टिव इवेंट्स. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ डाई इज रोल्ड, sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 numbers on a die. Let A is the event having odd numbers and B is the event having even numbers. Then A union B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is equal to sample space. So A and B are exhaustive events. The second example is when two coins are tossed, sample space is 2 raised to power n, 2 raised to power 2 is equal to 4 sample points. तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, उसमें 4 सैम्पल पॉइंट्स होंगे, हेड हेड, एक पे भी हेड आए दूसरे पे भी हेड आए. इसी तरह से नेक्स्ट जो होगा वो क्या है कि एक कॉइन पे भी हेड आए दूसरे पे टेल आए. इसी तरह से पहले वाले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आए, या फिर दोनों के ऊपर टेल आए. तो ए इज़ द इवेंट दैट हैविंग ओनली 2 हेड्स, कि दोनों कॉइन्स के ऊपर हेड आया. और बी इज़ द इवेंट having head on the first coin and tail on the second, and tail on the first coin and head on the second. Or C is the event having tail on both the coins. Then A intersection B. A intersection B is 5, but A union B is equal to HH, HT, TH, and it is not equal to S. A union B is not equal to S. So A and B are not exhaustive events.
Now, independent events. The two events A and B are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the happening of other event. A given B is equal to A and B given A is equal to B. Mathematically, it is equal to probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B, which is multiplication rule. For example, when we toss a coin twice, the outcomes of second toss will not be affected by the outcomes of first toss. The two events are independent. अब इसमें एक बात नोट कर लें कि सिलेक्शन जो होगी जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द इवेंट इज विद रिप्लेसमेंट, देन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं कि अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर इवेंट. अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मरियम और सना दो स्टूडेंट हैं. मरियम जो है वो बस से ट्रैवल करके स्कूल जाती है और सना जो है वो ऑन फुट जाती है या मतलब पैदल जाती है स्कूल. तो इसमें सना का पैदल जाना या मरियम का बस में जाना जो है ये दोनों इफेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को. तो ये क्या होंगे? दीज आर द इवेंट्स independent events. These are the independent events. Now, dependent events. The two events A and B are said to be dependent if the happening of one event affects the happening of the other event. For example, A given B is not equal to A and B given A is not equal to B. For example, if we draw two cards from a well shuffled pack of 52 playing cards in succession and the first card is not replaced into the pack before the next draw, then the two events will be dependent. के 52 कार्ड्स में से अगर हमने दो कार्ड ड्रा किए और उसमें से पहला कार्ड जब हमने ड्रा किया और उसकी जगह उससे ऐसा कार्ड हमने उसमें डाला नहीं पैक में, तो दूसरा कार्ड जब हम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल में एक कम हो जाएगा 51 कार्ड्स. तो वो क्या है कि सेकंड कार्ड जो है वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. अब इसमें एक ये क्या होंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. और इसमें एक चीज़ नोट करनी है कि जब इवेंट्स आर डिपेंडेंट द सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स इज विदाउट रिप्लेसमेंट. कि जब विदाउट रिप्लेसमेंट केस होगा, सिलेक्शन ऑफ इवेंट जो हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट होंगे, तो तब इवेंट्स जो हैं दे आर डिपेंडेंट. नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. बच्चों आपने कार्ड्स तो देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड्स, और शायद खेले भी हों. तो एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है. और 26 रेड कार्ड्स में आपके पास हार्ट होते हैं और डायमंड होते हैं रेड कार्ड्स में, और ब्लैक कार्ड्स में आपके पास होते हैं स्पेड और क्लब, ठीक है. और ये 13 कार्ड्स होते हैं. 13 आपके पास हार्ट होंगे, 13 कार्ड्स आपके पास डायमंड के होंगे, 13 आपके पास स्पेड और 13 आपके पास क्लब. ये 4 सूट्स कहलाते हैं, 4 सूट्स कहलाते हैं. और हर सूट में आपके पास एक जैक होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक एस होगा. तो कितने जैक हो गए टोटल? 4 जैक हो गए, 4 4 क्वीन हो गए और 4 आपके पास किंग हो गए और 4 आपके पास पैक में एस हो गए. एस कौन से कार्ड होते हैं? मन जो कार्ड होता है उसको यक्का बोलते हैं, ठीक है. तो आपके पास ये जो 3 जैक, क्वीन और किंग ये कार्ड हैं, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड. और ये टोटल आपके पास 12 कार्ड्स होते हैं. 4 एस हो गए, 4 आपके पास किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, ये 12 फेस कार्ड हो गए और 4 एस कार्ड हो गए आपके पास. और बाकी कार्ड्स आपके पास 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के नंबर से होंगे.
Now, how we calculating probability? The probability, as we know, that probability is equal to the number of time a particular event can occur divided by the total number of possible events. Or probability is equal to number of favorable outcome divided by total number of outcomes. ठीक है, probability is actually is the calculated guess. Now we see experiment tossing a coin. We have head and tail, the two outcomes. Probability of head is 1 by 2, as head is 1 favorable outcome and total outcomes are 2. It is equal to 1 by 2, means 50% chance of head. The another example is that we say that 60% chance of rain tomorrow. अब 60% का क्या मतलब है? 60% का मतलब है मोर लाइकली, 0% का मतलब नो रेन एंड 100% श्योर रेन. ठीक है. Definition of probability. The probability is the likeness of an event to occur and it is equal to favorable outcome divided by total outcomes. If we toss the coin, the sample space is S is equal to 2 raised to power n, where n is the number of coins. S is equal to 2 raised to power n means equal to 4 and means 4 outcomes. तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? टू कॉइन्स का. इट इज इक्वल टू हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. फर्स्ट कॉइन पे हेड और टेल दो ही आउटकम्स होते हैं, तो उससे आप सेकंड कॉइन पे क्या होगा? हेड हेड, या तो एक पे हेड आएगा दूसरे पे भी हेड, या फिर एक पे हेड होगा एक पे टेल होगा. इसी तरह से टेल के साथ आप देखें कि एक पे टेल आता है तो दूसरे पे हेड, या फिर एक पे भी टेल होगा दूसरे पे भी टेल होगा. ठीक है. In case of tossing 3 coins, we have sample space is equal to 8 outcomes, and it is equal to head head head, head head tail, head tail head, tail head head, tail head tail, head tail tail, tail tail head and tail tail tail. अब इसको हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि फर्स्ट कॉइन है उसके ऊपर हेड और टेल है, और दूसरे कॉइन के ऊपर हेड और टेल के साथ हमने ये कॉम्बिनेशन बनाया. जैसे एक के ऊपर भी हेड है, दूसरे के ऊपर भी हेड है, तीसरे के ऊपर, यानी तीनों कॉइन्स के ऊपर हेड आ रहा है. फिर हमारे पास क्या है कि दो के ऊपर हेड है और तीसरे के ऊपर टेल है. फिर एक के ऊपर हेड है, दूसरे के ऊपर टेल आ रहा है और तीसरे के ऊपर फिर हेड आ रहा है. इसी तरह से फर्स्ट के ऊपर टेल आ रहा है तो दूसरे के ऊपर हेड आ रहा है और तीसरे कॉइन के ऊपर हेड आ रहा है. इसी तरह से फर्स्ट के ऊपर हेड आ रहा है, दूसरे के ऊपर टेल और तीसरे के ऊपर टेल, या पहले दो के ऊपर टेल आ रहा है और तीसरे के ऊपर हेड आ रहा है, या फिर तीनों के ऊपर टेल आ रहा है. तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम. As we know that probability lies between 0 and 1. If probability of A is equal to 0, the event never happened. And if probability of A is equal to 1, the event always happen. कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की 0 है तो उसका क्या मतलब है कि इवेंट जो है वो हैपन नहीं कर रहा, नहीं अकर कर रहा. अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि वो इवेंट जो है वो अकर कर रहा है. एग्जाम्पल 11.3 ए पार्ट. A fair coin is tossed. What is the probability of getting a head, a tail? इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले जो भी प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबिलिटी में और जहाँ पे आ जाता है वो प्लस को शो करता है, और एंड और बोथ का जहाँ पे आपको लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुआ होगा तो उसमें आपने इंटरसेक्शन लेना होता है. इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें.
तो हमेशा जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व करेंगे, तो उसको सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस बनाना होता है उसमें, उसके बाद आप आगे चलेंगे। ठीक है, कॉइन की बात हो रही है तो कॉइन की आप सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे। कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, तो 2 रेज़ टू पावर n ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो एक ही कॉइन है तो 2 रेज़ टू पावर 1 आपके पास 2 आउटकम्स होंगे। सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, हेड और टेल। ठीक है, अब वो कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जैसे कि पीछे भी मैं आपको एक एग्जांपल में बता चुकी हूँ कि क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय 2। प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें, 2 हैं, हेड और टेल। और जब आप हेड की ले रही हैं तो हेड उसमें कितना है, 1 है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2। इसी तरह से टेल की जब आप प्रोबेबिलिटी लेंगे, सेकेंड पार्ट जो इसमें दिया हुआ है, तो वो भी आपके पास 1/2 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखें। ठीक है, कि जहाँ पे और यूज़ होगा और वहाँ पे आप प्लस और यूनियन लेंगे, और जहाँ पे बोथ या एंड का ऑप्शन यूज़ होगा वहाँ पे आपने इंटरसेक्शन लेना है। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास बी पार्ट जो है, इसमें देखें 11.3 का बी पार्ट। A perfect cubical die is rolled. What is the probability of getting 1 a 5? और सेकंड उसमें उसने पूछा है an even number, कि पहले 5 की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है, फिर सेकंड में आपने बताना है कि वो इवन नंबर है। अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी के आपने सबसे पहले सैम्पल स्पेस को डिज़ाइन करना है। सैम्पल स्पेस क्या होगा, एक डाई की बात हो रही है, तो डाई के ऊपर कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, 6 रेज़ टू पावर n इसका फार्मूला होगा, s इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर n, क्योंकि 6 साइड्स होती हैं डाई की। ठीक है, तो एक डाई की बात है, 6 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा इक्वल टू 6। ठीक है, 6 नंबर उसमें आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 क्या होगा, 5 कितने नंबर हैं इसमें, 1 है, और टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की इक्वल होगी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कौन सा है, यहाँ पे 5 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 6 है। फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि जो चीज़ आपसे पूछी जाए वो आपके लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है 11.4, इसका ये पार्ट है, आपकी बुक में है, देखिएगा। उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। प्लेइंग कार्ड्स में अभी आपने देखा कितने, ब्लैक 26 कार्ड्स होते हैं और रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं। तो फर्स्ट उसने कहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स। तो क्या होगा, ब्लैक कार्ड्स कितने हैं टोटल आपके पास, 26, और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स क्या होगा, 26 डिवाइडेड बाय 52, as we know that probability is equal to favorable outcomes divided by total outcomes. Second part है इसका कि find probability of an ace, कि एस की प्रोबेबिलिटी बताएं। अब एस कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स में 4 होते हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस कार्ड इज इक्वल टू 4/52 विच इज इक्वल टू 1/13। ठीक है, इसी तरह से थर्ड है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड्स। ठीक है, स्पेड कार्ड्स टोटल आपके पास कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, अभी आपने पीछे देखा इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, 13 डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि टोटल कार्ड 52 हैं, और ये इक्वल आ जाएगा 1/4 के। फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब। जैक तो हर एक में होता है, 4 जैक होते हैं टोटल, और क्लब में भी होता है, आपका स्पेड में भी होता है, डायमंड में भी एक जैक होता है, और एक हार्ट में भी एक जैक होता है।
तो क्लब में कितने जैक होंगे? एक ही होगा, क्योंकि हर सूट में एक होता है। तो 1 डिवाइडेड बाय 52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितने होंगे? 13 13 13, हर एक में एक एक जैक होता है। फिफ्थ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक्चर कार्ड। अब पिक्चर कार्ड कौन से हैं? जैक, क्वीन, किंग, हर एक में 3 है और 4 सूट्स हैं आपके पास। 4 3s are 12। टोटल पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड आपके पास कितने होते हैं? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की या पिक्चर कार्ड की क्या आ जाएगी? 12 डिवाइडेड बाय 52। सिक्स्थ इसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ डायमंड। अब इसमें डायमंड की क्वीन, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और जैक ऑफ क्लब अभी आपने ऊपर फाइंड किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई है आपके पास? 1/52। इसी तरह से क्वीन ऑफ डायमंड, अब डायमंड में क्वीन भी हर एक में, हर सूट में एक एक होती है, तो डायमंड में जो क्वीन है वो एक ही होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/52। तो और का इसमें देखिए और यूज हुआ है, और का मतलब है यूनियन प्लस। ठीक है, तो हम किसके इक्वल लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ क्लब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। 1/52 प्लस 1/52 इज इक्वल टू 2/52, और ये इक्वल आ जाएगा 1/26 के। ठीक है, बी पार्ट है इसका, इसी एग्जाम्पल का। अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 4 white balls. 2 balls are drawn at random from the bag. Find the probability that both are white, one is red and one is white. फर्स्ट आपने बताना है कि दोनों की दोनों जो हैं वो बॉल्स जो ड्रॉ की गई हैं बैग में से, वो दोनों वाइट हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा आपको, जैसे मैंने बताया है, कि आपने सैंपल स्पेस को डिजाइन करना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में। अब इसमें टोटल आपने बॉल्स पहले देखनी है। रेड बॉल्स कितनी हैं, व्हाइट बॉल्स कितनी हैं? रेड आपके पास 6 हैं, व्हाइट आपके पास 4 हैं, टोटल बॉल्स आपके पास 10 हो गई। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? और उसमें से ड्रॉ कितनी हुई हैं? 2 बॉल्स जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। 10 में से 2 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 10C2। अब फैक्टोरियल इसका खोलेंगे आपको याद है ना, कॉम्बिनेशन पीछे आपने पढ़ा है, उसको खोलेंगे तो आपके पास, और ये आपको कैलकुलेटर के ऊपर भी आपके पास ये ऑप्शन होता है, उससे डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। 45 वेज आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो पहली चीज उसने पूछी है, वो कहता है कि जो दो बॉल्स ड्रा की गई हैं वो दोनों की दोनों वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, वाइट बॉल्स कितनी हैं इसमें? 6 हैं, सॉरी 4 हैं। तो वाइट, अगर दोनों की दोनों वाइट बॉल्स हैं तो क्या होगा कि आपने 4C2 आपने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 10C2। ठीक है, 4C2 डिवाइडेड बाय 10C2, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट उसने पूछा है कि 1 इज वाइट एंड 1 इज रेड, कि एक रेड होगी, 2 बॉल्स ड्रॉ हुई, एक इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक रेड होगी और एक जो है वो वाइट होगी। अब वाइट बॉल्स टोटल 4 हैं, 4C1 इंटू एंड का लफ्ज यूज हुआ है यहाँ पे, देखिए एंड के लिए क्या किया हमने? मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन। 4C1 इंटू 6C1 डिवाइडेड बाय 10C2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, वो क्या है? 10C2 विच इज इक्वल टू 45 वेज। ठीक है, अब इसमें 4C1 आपके पास 4 के इक्वल आता है जब कॉम्बिनेशन आप सॉल्व करते हैं, और 6C1 आपके पास 6 के इक्वल आता है जब आप कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं, और 6 4 24 हो जाएगा, और टोटल आउटकम्स आपके पास 45 आ रहे हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 15। Now the example is 11.5. A box contains 14 identical balls, of which 6 are white, 5 red and 3 black balls. 4 balls are drawn. What is the probability that 2 are red, 1 is white? इसमें उसी तरह से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपने क्या उसमें डिज़ाइन करना है? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि टोटल बॉल्स कितनी हैं, वाइट कितनी हैं, रेड कितनी हैं, ब्लैक कितनी हैं। ठीक है, आपको वाइट बॉल्स दी हुई हैं, उसमें रेड बॉल्स बताई हुई हैं और ब्लैक बॉल्स। 6 वाइट बॉल्स हैं, रेड 5
बॉल्स हैं और ब्लैक बॉल्स जो हैं वो आपके पास 3 हैं। टोटल बॉल्स जो हैं वो आपके पास हैं एक बॉक्स में 14। अब उन 14 बॉल्स में से 4 बॉल्स जो हैं वो ड्रा की गई हैं। अब आपने सैम्पल स्पेस क्या बनेगा 14C4, और वो आपके पास सॉल्व करने के बाद कॉम्बिनेशन आपके पास आता है आंसर 1001। अब फर्स्ट उसने आपसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड, कि 4 बॉल्स ड्रा हुई हैं जिसमें से 2 जो हैं वो रेड हैं, बाकी 2 जो हैं वो बाकी 2 कलर जो हैं ब्लैक है या वाइट और ब्लैक जो हैं उनमें से होंगे। तो ये आपने फाइंड करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखें आपके पास रेड बॉल्स जो हैं वो कितनी हैं 5 हैं। 5C2 कि 2 बॉल्स जो अगर रेड हैं तो बाकी 2 बॉल्स जो हैं वो बाकी 2 कलर की जो बॉल्स हैं उनमें से आई होंगी। तो वो 2 बॉल्स जो हैं वो कितनी हैं 2 कलर की बॉल्स 6 + 3 टोटल 9 बॉल्स पीछे हैं। तो बाकी 2 बॉल्स जो हैं वो उनमें से आई होंगी। 9C2 डिवाइडेड बाय 14C4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस। ठीक है, और इन कॉम्बिनेशंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 360 डिवाइडेड बाय 101। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास है प्रोबेबिलिटी 1 इज वाइट, कि ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि एक जो है वो वाइट बॉल है। ठीक है, टोटल ड्रॉ कितनी हुई हैं 4 बॉल्स ड्रॉ हुई हैं, एक वाइट है तो बाकी 3 जो है वो बाकी कलर्स में से होंगे। ठीक है, 6C1 6 जो है वो आपके पास वाइट बॉल्स हैं, तो एक बॉल 6 वाइट बॉल्स में से आई है, तो बाकी 3 बॉल्स जो हैं वो बाकी 8 बॉल्स पीछे बच रही हैं, 5 रेड और 3 ब्लैक उनमें से आई होंगी। ठीक है, 6C1 × 8C3 डिवाइडेड बाय 14C3 इक्वल आ जाएगा आपके पास 336 डिवाइडेड बाय 1001। The next example is 11.6 from your book. Total number of cards is equal to 52 है और उसमें से ड्रॉ किए गए हैं 2 कार्ड्स। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा 52C2, और ये आपके पास कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 1326। अब इसमें जो फर्स्ट चीज आपसे पूछी गई है वो है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज किंग एंड अदर इज क्वीन। एंड इसमें यूज होगा, एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 1 इज किंग। अब टोटल किंग कितने होते हैं 4 होते हैं, अब एक उसमें से किंग है तो 4C1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 1 इज क्वीन, टोटल क्वींस भी 4 होती हैं पूरे पैक में, तो उसमें से एक क्वीन का क्या मतलब है 4C1। 4C1 × 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स क्या है आपके पास 52C2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 1326। सेकंड जो पार्ट है उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर एसेस, कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दोनों के दोनों जो कार्ड्स ड्रा हुए हैं वो दोनों एस कार्ड हैं। ठीक है, A1 नंबर वाले जो कार्ड हैं। ठीक है, तो टोटल एस कार्ड कितने होते हैं पैक में 4 होते हैं, तो क्या होगा 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1326। The next example 11.7, we have tossed 2 coins are tossed having sample points 2 raised to power n, which is equal to 4 sample points, and these are equal to HH, HT, TH and TT. इसमें आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप। एटलीस्ट जहाँ पे आता है उसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। 1 उसने कहा है ना 1 हेड, तो क्या होगा एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और यहाँ पे 1 हेड कहा है तो क्या होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 और 0 1 2 है ना, 2 आउटकम्स है। ठीक है, टोटल हेड इसमें कितने हैं 2 हैं। अब उसमें 0 हेड भी हो सकता है, उसमें 1 हेड भी हो सकता है और 2 हेड भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि 1 और 2
यानी 1 भी उसमें शामिल है, 1 हेड और 2 हेड। अब इसमें जो भी आएंगे सैंपल पॉइंट्स वो 1 हेड के आएंगे और 2 हेड के आएंगे। अब इसमें मैंने आपको एरो लगा के ये बताया हुआ है कि 2 हेड का इसमें सैंपल पॉइंट और 1 हेड के सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे। ए इज द इवेंट दैट एट लीस्ट 1 हेड टर्न्स आउट। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ जाएगा उसका, वो उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे, 3। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, 3/4, क्योंकि आपके पास 3 आउटकम्स हैं इन इसमें एन ऑफ ए में और एन ऑफ एस में। टोटल सैंपल स्पेस आपके पास 4 आउटकम्स हैं, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। नेक्स्ट एग्जांपल है 11.8। इसका सोल्यूशन देखें। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया तो सैंपल पॉइंट्स कितने बने, 8 सैंपल पॉइंट्स, और ये आपके पास सैंपल स्पेस आ गया, हेड हेड हेड, हेड हेड टी एच, हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि A is the event that exactly 2 heads appears on that coins। ठीक है, अब 2 heads के साथ देखें कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ये आ रहे हैं आपके पास 3 सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8, क्योंकि टोटल सैंपल पॉइंट्स आपके पास क्या है, सैंपल स्पेस में 8 है, और फेवरेबल जो आपसे पूछे गए हैं वो आपके पास कितने आए, 3/8। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है 11.9। इसका सोल्यूशन देखें। पेयर ऑफ डाइस को रोल किया गया, और ये आप ध्यान से इसका जो सैंपल स्पेस मैंने बनाया है ये आप देखें, ये आगे भी आपको यूज़ आप करेंगे बार बार इस चीज़ को। तो इसके सैंपल स्पेस देखें, डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस होता है वो हमारे पास 6, मैंने पहले भी आपको बताया 6n होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डाइस की बात हो रही है तो 6 2 होगा, और सैंपल स्पेस कितने बनेंगे 2 डाइस के, 36 सैंपल पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। अब सैंपल स्पेस ये मैंने बनाया है, देखें 1 1, यानी एक के ऊपर भी 1 आता है, दूसरे छक्के के ऊपर भी 1 आता है, या फिर एक के ऊपर 1 आता है दूसरे के ऊपर 2 आता है, एक के ऊपर 1 आता है दूसरे के ऊपर 3 आता है, एक के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 4, एक के ऊपर 1 दूसरे के ऊपर 5, इसी तरह से एक के ऊपर 1 और दूसरे के ऊपर 6 आता है। इसी तरह फिर 2 के साथ आप देखें, पहले के ऊपर 2 आता है दूसरे के ऊपर 1 आता है, पहले के ऊपर भी 2 दूसरे के ऊपर भी 2, इसी तरह से ये देखिए मैंने ये सैंपल स्पेस बनाया है। अब आपसे जो चीज़ पूछी गई है कि find the probability that the sum of the faces of dice is 9। ठीक है, कि जो दो उसके ऊपर सम आता है, जो दो फेसेस आते हैं आपके छक्के, जब आप छक्के 2 जो हैं वो आप रोल करते हैं तो 2 नंबर जो उनके ऊपर आते हैं उनको सम करने से आपका 9 आना चाहिए। अब आपने इस सैंपल स्पेस में देखना है कि वो कौन से नंबर हैं जिनको हम सम करके 9 ला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखें मैंने थोड़ा सा हल्का सा उसको लाइन से आपको दिखाया हुआ है, जैसे एक के ऊपर 3 आए दूसरे छक्के के ऊपर 6 आ जाए, एक के ऊपर 4 आए दूसरे के ऊपर 5 आ जाए, या पहले के ऊपर 5 आए दूसरे के ऊपर 4, और एक के ऊपर 6 आए फिर दूसरे के ऊपर 3। तो ये जो हैं ये सैंपल पॉइंट्स हैं जो कि इसमें आ सकते हैं सम ऑफ 9 के। अब इसमें ए जो इवेंट होगा उसमें हम ये सैंपल पॉइंट शो करेंगे जो कि 3 6 है, 4 5 5 4 और 6 3। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 4 हैं, और सैंपल स्पेस में आपके पास सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, 4/36 विच इज इक्वल टू 1/9। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छा इससे समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपने क्यूरीज हो, कुछ पूछना है तो आप मुझे ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं। गर्ल्स, दिस इज योर होम टास्क टुडे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 11.1, 11.2, 11.3 एंड 11.4। ये आपका होम असाइनमेंट है। आपने ये क्वेश्चन जो अभी मैंने एग्जांपल्स कराई हैं इसी से रिलेटेड हैं, आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और फिर मुझे आपने ग्रुप में सेंड करने हैं।